Hello everyone, good morning all, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and today we are going to do our remaining question from exercise 6.2 from NCERT class 10th and without wasting time let's start. Question number 6. In figure A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. Here figure is given to you and it is mentioned that ABC are points on these respective sides. You are given two conditions and we are asked to prove the third one. So let's start. We have done the other 5 questions. You can check my last video. Given is AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. These two things are given and to prove, you are asked to prove BC is parallel to QR. Let's start the proof. You were told why it is necessary to write it down in that way. So I told you how to start the question. We will take hint from what has been asked to prove. BC parallel to QR, ये आपको प्रूव करना है. इट मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल में है? ट्राइंगल OQR. सो हम इफ आई विल प्रूव दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस मीन्स OB अपॉन OQ, BQ, OC अपॉन CR. इफ आई विल प्रूव दीज टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो कन्वर्स ऑफ BPT से आपका BC पैरेलल हो जाएगा QR के. बट बिफोर दैट कैसे प्रूव करेंगे? व्हाट इज गिवन? गिवन है AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ. So I will talk about this triangle. ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इसके पैरेलल है. ट्राइंगल PO, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है Q, ये है B. सिर्फ इस ट्राइंगल की मैं बात करूं. इन ट्राइंगल है OPQ. OPQ ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के पैरेलल है. पैरेलल है तो यूजिंग BPT व्हाट यू कैन से? यूजिंग BPT we can say OA upon AP is equal to OB upon BQ. I hope you get it why I have written this. BPT की statement यही है आपके पास. Similarly in triangle let's mention it equation 1. In triangle the other triangle is AC parallel to PR. वो triangle जिसमें AC PR दोनों AC and PR. So in triangle OPR, in triangle OPR, ये इधर ट्राइंगल है, द अदर साइड ये वाला ट्राइंगल आपका, ये साइड इसके पैरेलल है, सो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. इन ट्राइंगल OPR AC इज पैरेलल टू PR, ये गिवन था. सो यूजिंग BPT व्हाट यू कैन से? BPT का यूज से आप कह सकते हैं साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शनलिटी लिखिए OA अपॉन AP is equal to OC upon CR. Now from equation 1 and 2, what did we notice? We noticed that LHS of both the equations are equal. So from equation 1 and 2, LHS equal है तो RHS को equal होना पड़ेगा. देखिए दोनों में LHS equal है, so यहाँ से इस RHS को भी equal बनना पड़ेगा. बना दीजिए equal. OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. देखिए चेक कहाँ पे पड़ता है. OB ये साइड है, BQ ये वाली साइड है, OC दिस पोर्शन, CR दिस पोर्शन. सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इट मीन्स इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? OQR, sides are in proportion and when sides are in proportion that by converse of BPT क्या मेंशन कर देंगे आप? by converse of BPT. BPT का converse क्या कहता है आपको? if sides are in proportion then the third line should be parallel to first line of your triangle. third line means ये वाली जो लाइन है ये ट्राइंगल की इस लाइन के लिए पैरेलल होगा. So using converse of BPT, you will simply mention by converse of BPT, BC is parallel to QR. Hence proved. So simple. Let's take a quick review. कैसे किया?
दो चीजें गिवन है आपको, दो साइड्स के पैरेलल थी, थर्ड साइड आपको पूछा था। सो क्या किया मैंने, वो ट्राइंगल ली जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं आपके पास। उस ट्राइंगल में हमें पता है साइड पैरेलल हो तो साइड अदर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ से हमने कंसेप्ट लगाया OA अपॉन AB, OB अपॉन BQ एक ट्राइंगल में। दूसरी ट्राइंगल ली OPR वो ट्राइंगल है जिसके अंदर आपका ये वाला कंसेप्ट काम करता है। ये साइड इसके पैरेलल है तो अदर टू साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन में कर दिया हमने। अब दोनों इक्वेशन से हमने देखा एक साइड तो इक्वल है, सो द अदर पार्ट विल बी आल्सो इक्वल। RHS को RHS के इक्वल पुट किया, सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT साइड विल बी पैरेलल। सो दिस इज वेरी इजी। You may pause the video to write it down. I hope you get it. So here next question is question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side. So this is using 6.1 theorem. Theorem 6.1 is your BPT. You may check in your NCERT exercise. In exam it will not be written like this. In exam it will be mentioned like using BPT or using this theorem, basic proportionality theorem. So what is given to you? A line through the midpoint of one side of a triangle. Let's draw the figure first. कोई triangle है आपके पास. Okay, this is consider triangle ABC. हमने कोई triangle लिया. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle. So triangle के किसी एक साइड पे हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। AB का मिड पॉइंट हमने कह दिया दिस इज पॉइंट D, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड का मिड पॉइंट लिया। पैरेलल टू अनदर साइड, जो लाइन D पॉइंट से पास होगी वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। D से पास होते हुए ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन है, ये BC के पैरेलल है, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है दिस बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि ये जो इस पॉइंट को इफ से दिस इंटरसेक्ट पॉइंट E, AC को E पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो हमें प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आई होप यू गेट इट। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है, जो थर्ड साइड से पैरेलल होते हुए एक लाइन अगर यहाँ से हम प्लॉट करते हैं तो वो अनदर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन इज D is midpoint of AB. This is given to you. D midpoint है, it means AD is equal to DB. I hope this is clear. जितना ये पोर्शन है उतना ही ये पोर्शन। This thing is given. One more thing is given. क्या given है आपको? पैरेलल है किसके? DE पैरेलल है BC के। These two things are given to you. Okay. To prove, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है E is the midpoint of AC, or you can write as AE is equal to EC. ये आपको प्रूव करना है। So let's start with the proof. कैसे करेंगे? अब देखो पैरेलल है, this condition in triangle ABC, DE is parallel to BC. It is mentioned there using 6.1 means आपको यहाँ पे सिमिलरिटी कंसेप्ट ना यूज करके कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, बीपीटी स्टेटमेंट को यूज करेंगे हम। बीपीटी स्टेटमेंट क्या कहता है, एक ट्राइंगल में इफ दिस इज द सिचुएशन देन यूजिंग बीपीटी कहता है आपको साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन में बनाते हैं। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही है बीपीटी आपके पास। नाउ व्हाट मोर इज गिवन, AD और DB इक्वल है। AD और DB यानी कि AD अपॉन AD, DB को आप AD की जगह लिख सकते हो, बोथ आर सेम। AE अपॉन EC कैंसल आउट, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AE इज इक्वल टू
EC, यही प्रूव करना था आपको। यस, हेंस प्रूव्ड। सो सिंपल, सिंपली आपने बीपीटी का यूज किया है। हार्डली दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। फिगर बनाना है, कंडीशंस दो हैं आपके पास, बीपीटी को अप्लाई करना है, सिंपली पुट करना है। इफ इट इज दीज मिड पॉइंट, तो एडी और डीबी क्या होंगे आपके पास, दीज टू विल बी इक्वल। सो एडी को आपने क्या किया, डीबी के इक्वल पुट कर दिया। जहां क्वेश्चन में डीबी था यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे यूजिंग 1, इसको इक्वेशन 1 मेंशन कर देते हैं, सो दैट एग्जामिनर विल कम टू नो कि आपने क्या किया। यूजिंग 1 पुट डीबी इज इक्वल टू एडी, एडी अपॉन एडी विल गिव यू 1, ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए ई विल बी इक्वल टू ई सी। यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। So here question number 8, using theorem 6.1, prove that line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Now it's a similar question like question number 7, but in reverse order. Like in previous question, we were given that a line passing through midpoint of one side of a triangle and parallel to another side. Question ये था आपके पास, पहले एक लाइन जो मिड पॉइंट से पास करती थी थर्ड लाइन के पैरेलल थी, बट हियर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है क्वेश्चन में, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब डी और ई आपके लाइंस के मिड पॉइंट हैं, प्रूव करना है डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। सो लेट्स राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। गिवन है आपको डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है आपका ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो आप, या एक स्टेप और ऐड कर देते हैं हम, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये है ए डी बी डी के इक्वल है, सो बी डी को इफ आई विल टेक टू द अनदर साइड, इधर आप डिवाइड में लेके आएंगे, इट विल बिकम 1, सिंपल। वन मोर थिंग इज गिवन, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ए ई किसके इक्वल है, ए ई इज इक्वल टू ई सी। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है आपको डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो डी ई साइड है वो बी सी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। गिवन का यूज करते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1। सेकेंड गिवन क्या था आपको, ए ई इज इक्वल टू ई सी, सो इसको क्या करूं, डिवाइड में लेके आते हैं, सेम फॉर्म, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। कुछ नहीं किया मैंने, दो साइड दो पार्ट्स इक्वल थे, लाइक इफ आई विल से 5 इज इक्वल टू एक्स, या फिर ये कह देते हैं एक्स इज इक्वल टू 5, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, तो इससे पहले का स्टेप क्या था आपके पास, एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज मैंने यहाँ पे की है। ये अगर केस है तो आप इस पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो, इट विल बिकम इक्वल टू 1। बस यही चीज की है दोनों पार्ट्स में, ए डी बी डी के इक्वल था तो ए डी अपॉन बी डी 1 हो गया, ए ई सी के इक्वल था, ए ई अपॉन ई सी 1 हो गया। इनफैक्ट डोंट यूज इट हियर, इसको यहाँ नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ नहीं लिखो, इसको प्रूफ में यूज करते हैं सीधा। चलिए, आई होप यू गेट इट, कैसे मैंने 1 के इक्वल लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करें 1 एंड 2 से, इस बार तो एल एच एस इक्वल नहीं बन रही, बट आर एच एस का पार्ट देखिए। इन आर एच एस यू हैव इक्वालिटी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होगा, यस। एल एच एस इज इक्वल, सो आर एच एस इज ऑल्सो सपोज टू बी इक्वल, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है आपके पास, जस्ट हैव अ लुक एट द फिगर, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये पोर्शन अपॉन ये, दिस अपॉन दिस, क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। साइड्स अगर प्रोपोर्शन है तो क्या होगी, साइड पैरेलल होगी थर्ड साइड के, बी ई पैरेलल हो गई बी सी के, यही तो प्रूव करना था आपको।
ओनली वन इम्पोर्टेंट स्टेप इज हेयर कि आपके पास इक्वालिटी थी, आपने सिर्फ उसको प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मेट में लिखा है। इक्वल था, डिनोमिनेटर में लाए 1 के इक्वल, LHS RHS दोनों से हमने, RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए हमने यूज किया है कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप दिस इज वेरी इजी वन। इफ यू डोंट गेट इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can take one more class for your doubts. You may pause the video to write it down. So moving next to question number 9. Here figure is not given, simply statement is given to you. Look, in triangles or I say in geometry section, the basic problem the student face is sometimes they make the figures wrong or sometimes they don't get it, what has been given, what has to prove, and how to start the question. That is the major mistake. If you start the question correctly then you will definitely get the answer within minutes, but if you don't get it how to start तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा and moreover it will spoil your mood, it will spoil your mind, so आप बाकी क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। So उसके लिए there is only one solution, that is when you do the questions know how to start it specifically when figure is not given. If figure is given it's easy, but like this question figure नहीं है तो देखिए कैसे बनाते हैं। this ABCD एक ट्रेपेजियम है, okay, trapezium you know the basic properties for trapezium in which AB is parallel to DC। दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं वो हैं AB और DC और डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। सो लेट्स मेक अ ट्रेपेजियम। इस तरह से दिखता है आपका ट्रेपेजियम, दो पैरेलल साइड होती है, दो इंटरसेक्टिंग साइड्स होती हैं, A B C D, ये ट्रेपेजियम है आपके पास। अब इसमें आपके पास डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? एट पॉइंट O, दीज आर योर डायगोनल्स। पॉइंट हो गया O। AO साइड ये है अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी कि डायगोनल्स को ही प्रोपोर्शनलिटी में आपको शो करना है। so, देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको AB इज पैरेलल टू CD। फर्स्ट थिंग दिस, ये गिवन है AB और CD पैरेलल है, बस ये ही गिवन है आपको, और डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे बस, और कुछ नहीं गिवन है आपको। टू प्रूव AO अपॉन BO is equal to CO upon DO। One of the important question from an NCERT exercise, 3 marks में sometimes this kind of question is asked। So here I will do a bit of construction, छोटी सी construction कर रहे हैं हम। तो construction आपने क्या करनी है, look this data is not sufficient enough when we do construction। जब आपके पास data is not sufficient enough to find your to prove, अब यहाँ पे ये मैं नहीं फाइंड कर पा रही हूँ, सो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा हिंट लेंगे। AB और CD पैरेलल है आपके पास, सो कंस्ट्रक्शन क्या करती हूँ मैं O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। आई विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड इंटरसेक्टिंग AD एंड BC एट पॉइंट, यू मे नेम इट एज PQ, एनी नेम यू लाइक इट मे गिव। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने किया है थ्रू पॉइंट O, point O is your point of intersection, draw a line parallel to AB, draw PQ, simply write is PQ parallel to AB। आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, draw a line through O passing through P and Q at side AD and BC respectively and parallel to AB। मैंने सिर्फ ये important point है ये हाईलाइट किया है आपके लिए, PQ पैरेलल है AB के। चलिए अब यहाँ से दो चीजें आपके पास हो गई है, AB पैरेलल CD, PQ पैरेलल AB। अब देखो AB के CD भी पैरेलल है, AB के PQ भी पैरेलल है। सो वी नो व्हेन two lines are parallel to each other and any third line parallel to one of the line will be parallel to another line also। means अगर आपका AB CD के पैरेलल है तो यहाँ से CD आपका PQ के भी पैरेलल होगा।
इन शॉर्ट अगर मेरे पास ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये ऊपर के साथ भी पैरेलल है, तो तीनों ही क्या होंगे आपके पास, म्यूचुअली पैरेलल लाइन, तीनों ही आपस में पैरेलल होंगी. सो वी विल यूज दिस कंसेप्ट हियर, बट इन कंस्ट्रक्शन आई हैव ड्रॉन इट पैरेलल टू वन साइड. बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम पैरेलल टू थर्ड साइड. सो सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ा है अभी तक बीपीटी, सो वी विल यूज दैट ओनली. इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लें, जो कंस्ट्रक्शन क्या है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दैट. सो इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल लिया मैंने. अब एडीसी ट्राइंगल में व्हाट सफिशिएंट डाटा वी हैव ओपी पैरेलल टू सीडी. You will mention here because PQ is parallel to AB is parallel to CD. अब PQ पूरा पैरेलल है तो PO is a part of it, that will also become parallel. So यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे in triangle ADC PQ is parallel to CD. So OP will be also parallel to CD. मैं यानी कि क्या किया मैंने, PQ पूरी साइड पैरेलल थी CD के, सो इसका स्मॉल पार्ट भी पैरेलल होगा डेफिनेटली. सो इसी कंसेप्ट का यूज किया मैंने. नाउ आई नो हाउ टू अप्लाई बीपीटी. वन साइड आपको पैरेलल चाहिए, बस 2 पॉइंट्स पे आपका इंटरसेक्ट कर ही रही है. सो यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का यूज कीजिए. बीपीटी क्या कहता है, साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन AP अपॉन PD is equal to AO upon OC. इक्वेशन नंबर 1. क्या किया, ये पोर्शन अपॉन ये OA अपॉन OC, ये वाली ट्राइंगल ली है मैंने यहाँ पे, दिस ट्राइंगल ADC. नाउ एक ट्राइंगल और लेंगे, कौन सी ट्राइंगल, नाउ वी विल चूज द अनदर ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल. एक पार्ट हमने लिया AB अपॉन AP अपॉन BD इज इक्वल टू AO अपॉन OC. नाउ ये पार्ट आपके पास आ गया है. हमारी रिक्वायरमेंट कौन से पार्ट की है, नाउ BD शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड सो दैट OB एंड OD विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन आवर रिजल्ट. सो अब कौन से ट्राइंगल चूज करूं, हाउ टू चूज इट सो दैट BD भी इंक्लूड हो जाए. सो देयर आर 2 वेज. हम क्या करें, इन ट्राइंगल ABD, पहले आपने लिया था ट्राइंगल ADC, अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABD. इन ABD जो आपका OP साइड है वो किसके पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है. यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है, नो नीड टू मेंशन अगेन. OP जो है AB के भी पैरेलल है. सो इस वाली ट्राइंगल में इस तरह से दिखेगी ट्राइंगल आपको, ये वाली साइड तो पैरेलल है, ये पैरेलल है तो क्या होगा, this upon this sides proportionate. so using BPT क्या कहता है आपको, साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, प्रोपोर्शनलिटी करते हैं. अब ट्राइंगल इन्वर्टेड है आपके पास, उल्टी बनी हुई है ट्राइंगल, डजंट मैटर, कंसेप्ट विल रिमेन द सेम. BPT तो लगेगी, चाहे ट्राइंगल सीधी है, उल्टी है, साइडवेज है, अपवर्ड डाउनवर्ड, वी डोंट केयर, वी जस्ट सिंपली पुट आवर कंसेप्ट से हमने पैरेलल तो निकाल दिया. नाउ DP upon AP is equal to, in fact I will write it as PD upon AP is equal to this upon this. जो साइड जिधर आपने ऊपर लिया है आपको उसी के प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर लेना है. if you have taken this one first, then point D will also come in numerator from the other fraction also. यहाँ से DP आया है, so इधर से आपके पास DO upon BO. So this is your second equation. But before declaring it second, I got a small confusion here that says कि हमारे पास यहाँ पे in equation first AP you have in numerator, यहाँ पे तो PD आया है, but no issues. हमने किया था in previous questions by reciprocating. I will erase it from here so that I will get some space to write. By reciprocating. रेसिप्रोकेट करने से क्या होता है आपके पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है,
AP will become your numerator upon PD. बेसिकली आपको पलट देना है, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर फॉर बोथ द फ्रैक्शन। यहाँ से BO ऊपर आ जाएगा, नीचे हो गया DO। नाउ मेंशन इट इक्वेशन सेकंड। व्हाई आई डिड सो, कि मुझे LHS विल बिकम इक्वल। यहाँ से देखिए अब LHS जो था दोनों इक्वेशन में क्या हो गया, इट हैज बिकम इक्वल नाउ। सो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव डन इन मैनी प्रीवियस क्वेश्चन, दोनों के इक्वेशन का यूज करते हुए LHS विल आल्सो बी इक्वल कर देते हैं। LHS इक्वल है, RHS इक्वल प्रूव हो जाएगी क्या, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। I have written OC but here I am writing CO, doesn't matter। चलो सेगमेंट है, सेगमेंट को आप किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। नाउ कंपेयर विद यूर टू प्रूव पार्ट। टू प्रूव क्या कहता है, AO अपॉन BO। सो अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, हमें क्या करना पड़ेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लास्ट स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हुआ आपका, ये नीचे आ जाएगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO ऊपर चला जाएगा, CO अपॉन DO। दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। सो वी हैव टू टेक हिंट फ्रॉम आवर टू प्रूव पार्ट। जो पूछा है वही प्रूव करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। BO नीचे आ गया, CO ऊपर चला गया। सो मैं pause the video to write it down. I will take a quick review about this question. This is one of the important questions and the next one question is based on the same। ABCD के पैरेलल था, हमने कंस्ट्रक्शन किया, PQ एक साइड के पैरेलल ले लिया, थर्ड साइड के पैरेलल अपने आप हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ से मैंने एक बार ट्रायंगल ABC चूज किया है, एक बार ट्रायंगल ABD चूज किया है। सो दैट वाई कि मेरे पास ये जो पोर्शन है ये वाला, ये दोनों में कॉमन था। तो मैंने वही कंसेप्ट यूज किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कंसेप्ट। एक साइड अगर इक्वल है तो अदर साइड्स विल आल्सो बी डेफिनेटली इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 थोड़े से चेंजेस, माइनर चेंजेस आई हैव डन, लाइक हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बिफोर दैट आई हैव डन रेसिप्रोकेशन। सो यू गो थ्रू इट, do it by yourself, and if you face any doubt feel free to ask. Do let me know in comment section please, I will take doubts. Pause the video to write it down. Now moving next to question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABC intersect each other at point O such that, this is the condition, show that ABCD is a trapezium. So it's like previous question but here in reverse order. In initial you were given that it was a trapezium and you were asked to prove it. But here this is given and you are asked to prove that ABCD is a trapezium. So how we will start it? Let's make the figure first. Basically it is a trapezium, that's why आप क्या करोगे, trapezium की शेप ही लोगे, पहले quadrilateral है। So consider this as ABCD is a trapezium। ABCD consider कर लेते हैं that this is a kind of trapezium। Okay, AO BO CO upon DO diagonals को join करते हैं so that we will get the intersection point O। This is your point AO upon BO, this is the condition। So write it in the format given है आपको, AO upon BO is equal to CO upon DO। To prove है आपके पास ABCD is a trapezium and for trapezium what we need to prove, the basic condition क्या है, two sides should be parallel to each other। So from here हमें क्या prove करना है, AB should be parallel to CD। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, हिंट लेंगे यहीं से। सो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलरली क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या, थ्रू पॉइंट O लेट्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू
इसको नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज ओपी. इनफ, लेट्स नेम इट एज ओपी. सो कंस्ट्रक्शन क्या क्या, ज्वाइन ओपी सच दैट, एक कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो. कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ओपी इज पैरेलल टू एबी. मैंने ओपी को कंसिडर कर लिया एबी के पैरेलल. एंड अब प्रूफ करते हैं. प्रूफ के लिए मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई अप्रोच दिस क्वेश्चन. द मेन थिंग यू शुड फोकस ऑन इज स्टार्ट कैसे करना, हाउ टू इनिशिएट. ओपी एबी के आपने पैरेलल लिया. इफ आई विल प्रूव ओपी इज पैरेलल टू सीडी, देन माय वर्क विल बी डन. यस, ओपी एबी के तो आपने पैरेलल लिया, आपने प्रूव कर दिया ओपी इज पैरेलल टू सीडी. इट मीन्स AB और CD म्यूचुअली पैरेलल हो जाएंगे एंड योर वर्क विल बी डन. आई होप यू गेट इट. 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर वाला कंसेप्ट. सो यहाँ से क्या करें, कौन सी ट्राइंगल का यूज करें जिसमें आपके पास OP साइड आ जाए. इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABD. इन ट्राइंगल ABD में OP इज पैरेलल टू AB. हमने कंसिडर किया है using BPT. I hope you get it if you have done the previous question carefully. So कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें. BPT का यूज कर सकते हैं. Yes, ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल है. So DP upon PA is equal to DO upon BO. DO upon DO. From here, let's consider this as equation number 1. Okay, BPT का यूज किया. Now given क्या था आपको, given था AO upon BO is equal to CO upon DO. This thing was given. So let's make a few changes so that आपके पास यही वाला फॉर्मेट आ जाए. यहाँ पे किसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इन दोनों को. If you remember in previous question हमने रेसिप्रोकेट किया था. Here हम डायरेक्टली गिवन में चेंजेस करते हैं. ये बन जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO. नाउ नेम इट एज इक्वेशन सेकंड. आई होप यू गेट इट. कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. DO ऊपर चला गया, AO आपका डिनोमिनेटर में आ गया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट डिड वी नोटिस, वी नोटिस दैट वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल. एक पार्ट इक्वल है. देखिए, either you can change here but I suggest you better to take hint from your given में जो था उसी का हिंट लिया, थोड़े से चेंजेस किए. एक इक्वेशन का एक पार्ट इक्वल, so the other part will be equal. It means DP upon PA is equal to CO upon AO. DP upon PA is equal to CO upon AO. कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. कन्वर्स ऑफ BPT PO is parallel to your CD. Look, इसको रेसिप्रोकेट करके लिखिए, that is also correct. You may not directly also. This upon this is equal to this upon this. So you may use here directly. आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया, कन्वर्स ऑफ BPT. आप इसको रेसिप्रोकेट करके फिर भी फॉर्मेट बना सकते हो. यू कैन यूज डायरेक्टली हियर आल्सो. सो फ्रॉम बट PO was parallel to AB, which implies that PO AB के भी पैरेलल है, PO CD के भी पैरेलल है. AB किसके पैरेलल होगा, CD के. That proves that ABCD is a trapezium. यही प्रूव करना था आपको. Yes, it was the required result. हमने सिर्फ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन and just do some mathematical cross multiplication and we got our desired result using the concept of BPT and converse of BPT. I hope you get it. This is the easy one. So with this question our exercise 6.2 is complete from my side. Students, please do let me know in comment section if you get it, if you don't get it, and do it regularly
tomorrow we will start our new concept, and till then, goodbye, take care, do your work regularly. Thank you students, have a good day.